Good morning, students. I am Sarita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School, Talk. In continuation of chapter number 2 of science, which is acids, bases and salts, so far we have discussed everything about the chemical characteristics of acids and bases. And in continuation of that part, in today's class, students, we are going to study in detail that what do all acids and all bases have in common. जितने भी acids और bases होते हैं, इनके अंदर common चीज क्या है? So the common thing is that all these acids and bases, whenever they are dissolved in water, that means they are in the aqueous state. So they produce the ions in the aqueous state. Here comes the first point, that all these acids and bases, they produce ions in aqueous solutions. Like if we are talking about the acids, so they are going to produce H plus ions, and if we are talking about the bases, then they are going to produce OH minus ions in the aqueous state. And we know very well that these ions, they carry charge. So ये acids and bases जो water के अंदर ions produce कर रहे हैं, ions के ऊपर positive और negative charge present रहता है. That's why being having charged particles, these acids and bases in the aqueous state, they are conducting in nature. They conduct the electric current. ये electricity का conduction करने का भी काम करते हैं. बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं. लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, so when this hydrochloric acid is dissolved in water, अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो it produces H plus ions and Cl minus ions in the aqueous state, right? Aqueous form में ions का formation यहाँ पे हो रहा है. If we are talking about the sulfuric acid, so when it is dissolved in water, it produces H plus ions plus sulfate ions, that is SO4 2 minus. If we are talking about the sodium hydroxide, अगर हम बेस की बात कर रहे हैं तो जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, it dissociates into its ions in this way. It forms Na plus ion and OH minus ions. Same with the KOH, when it is dissolved in water, it produces K plus and OH minus ion. एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, like the milk of magnesia, an antacid, magnesium hydroxide. When it is dissolved in water, it forms Mg2 plus OH minus ion. So with the help of these examples, it is clear that whenever any acid or a base is dissolved in water, it produces ions. If it is the acid, then it produces H plus ions. If it is a base, then it produces OH minus ions in the aqueous state. Now students, as these acids and bases, they are conducting in nature in the aqueous state. जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयंस का फॉर्मेशन करते हैं. आयंस कैरी चार्ज, तो चार्ज का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा. That's why these acids and bases, they are also called as electrolytes. इनको हम एसिड्स और बेसिस को इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं. So what electrolytes are? Electrolytes are those substances which conduct the electricity by the movement of ions. वो सब्सटेंस जिनके अंदर आयंस का, चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट की वजह से अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं, देन दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट. जितने भी एसिड्स और बेसिस हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, they all are the examples of electrolytes. Now this point can be further explained with the help of one activity which is given in your NCERT textbook, that is activity 2.8. अब इस एक्टिविटी 2.8 के अंदर NCERT में क्या गिवन है? सिंपल आपने एक एपरेटस सेटअप किया है, इलेक्ट्रिक सर्किट आप सेटअप करेंगे. वी आर टेकिंग वन बीकर, एक बीकर यूज़ किया. उस बीकर के अंदर हमने यूज़ किया है एक वुडन कॉक का पीस हमने रख दिया. 2 iron nails are fixed on that wooden cork, and then बीकर के अंदर हमने फिल किया है एसिड या बेस प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो बीइंग एडेड.
थोड़ा सा हम उसके अंदर वाटर भी मिक्स करेंगे और आयरन नेल्स को हमने कनेक्ट कर दिया सर्किट के साथ कंप्लीट, राइट। हमने पूरा वहाँ पे स्विच भी लगाया है, राइट। एक छोटा सा हमने एलईडी बल्ब भी वहाँ पे यूज़ किया। तो जैसे इस कंप्लीट सर्किट को हम स्विच ऑन करते हैं दैट एलईडी बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो रीजन क्या है, दोज टू आयरन नेल्स दे आर नॉट इन द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ईच अदर, वो तो आपस में एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर and moreover that they are fixed on a wooden cock also, एक wooden block के ऊपर wooden cock के ऊपर उसको फिक्स कर रखा है, तो उसमें टच नहीं कर रहे हैं वो, फिर भी बल्ब क्यों ग्लो कर रहा है एलईडी बल्ब, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हमने वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया था प्लस उसमें थोड़ा सा अमाउंट हमने वाटर मिक्स किया है, तो वाटर मिक्स करते ही ये HCl दिस इज गोइंग टू डिसोशिएट इनटू इट्स आयंस, इसने H+ आयन रिलीज किए हैं। एज these H+ ions these carry charge, ये चार्ज कंडक्ट कर रहे हैं, इनका फ्री मूवमेंट होगा एक्वस स्टेट के अंदर सॉल्यूशन के अंदर। सो these particles are actually conducting the electric current, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने का काम कर रहे हैं और वहाँ पे एलईडी बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। So this activity 2.8 which is given in your NCERT textbook, it explains a very good way that why these acids and bases in the aqueous state they are called as electrolytes, right? So that's all for the what do all acids and bases have in common, हमने इसके बारे में बात कर ली है। कंटिन्यूएशन में बात करते हैं that what happens to an acid and base in water solution, जब हम एसिड और बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो एक्चुअल में उनके साथ क्या होता है। Now student, these acids and bases they are not showing their acidic and basic nature just because of presence of hydrogen atom in their formula or the presence of hydroxide atoms in their formula। सिर्फ इनकी प्रेजेंस की वजह से थोड़ी ना ये एसिड और बेसिस अपनी एसिडिक और बेसिक नेचर को एक्सप्रेस करते हैं। They are expressing their acidic and basic nature only when they are dissolved in वाटर, जब इनको हमने इसे वाटर में डिसॉल्व किया तभी वो अपनी एसिडिक बेसिक नेचर शो कर पाते हैं, बिकॉज इन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर दे डिसोशिएट्स इनटू देयर आयंस, राइट। तो एक एसिड अपनी एसिडिक नेचर सिर्फ कब शो करेगा, जब वो H+ आयन रिलीज करेगा। एक बेस अपनी बेसिक नेचर सिर्फ कब एक्सप्रेस कर पाएगा, जब वो OH- आयन रिलीज करेगा। एंड व्हेन दीज H+ आयंस और OH- आर रिलीज्ड, they are only released when these electrolytes are dissolved in water। तो हमें एक बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि जब भी एसिड और बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस प्रोड्यूस करते हैं एंड इन दिस वे दे शोज देयर एसिडिक और बेसिक नेचर। नाउ साइंस में हमेशा देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अगेन यू मस्ट बी थिंकिंग दैट इज देयर एनी प्रूफ जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकें कि सच में ये एसिड और बेस सिर्फ जब वाटर में डिसॉल्व होंगे सिर्फ तभी ये अपने आयंस रिलीज करेंगे एंड देन ओनली दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर एसिडिक और बेसिक नेचर। सो द आंसर इज यस, दैट आंसर इज एक्सप्लेन्ड अगेन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इन द फॉर्म ऑफ वन एक्टिविटी। व्हाट दैट एक्टिविटी इज, दैट इज द एक्टिविटी 2.9। अब इस एक्टिविटी 2.9 के अंदर हमने क्या यूज़ किया है, अगेन वी आर टेकिंग अ टेस्ट ट्यूब, हमने एक टेस्ट ट्यूब यूज़ कर रहे हैं हम, एंड इन दैट टेस्ट ट्यूब वी एडेड सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, सॉलिड फॉर्म में उसको हमने यूज़ किया है, राइट। एंड देन उस टेस्ट ट्यूब में इन विच वी आर ऑलरेडी हैव एडेड दिस सोडियम क्लोराइड, in the same test tube we are going to add one acid in its concentrated form, that is sulfuric acid। हमने वहाँ पे H2SO4 एसिड को भी मिक्स कर दिया। When this NaCl and H2SO4 they are going to react with each other, chemical reaction will take place over there and there is a formation of two new products। Those are, वहाँ पे formation होता है students sodium hydrogen sulfate, it is also called as sodium bisulfate भी इसको हम कहते हैं। इस फॉर्मूला इज NaHSO4, इसका फॉर्मेशन हुआ और साथ में बनता है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन हुआ। Now you must be thinking that earlier we are talking about hydrochloric acid, हम तो हमेशा HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे थे। Then why this time we are using the word hydrogen chloride gas, हमने इसको ऐसा क्यों कहा, because in the test tube, जिस टेस्ट ट्यूब में हमने ये टू सॉल्यूशंस
लिए यूज़ किए हैं। वन इज दी NaCl, उसके साथ हमने मिक्स किया है सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को। इन दोनों को मिक्स करने के बाद वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है सोडियम बाइसल्फेट का, हाइड्रोजन क्लोराइड का। सो अगर ये एसिड होता, क्या ये एसिड है या सिर्फ ये गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको प्रूव करने के लिए फर्दर वी आर यूजिंग अ लिटमस पेपर। हम वहाँ पे एक लिटमस पेपर यूज कर लेते हैं। वी आर यूजिंग अ ब्लू लिटमस पेपर, राइट। तो अगर यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के माउथ पे वी आर ब्रिंगिंग दी ब्लू लिटमस पेपर नियर बाय दिस केमिकल इक्वेशन, जहाँ पे केमिकल इक्वेशन हुई है, तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है, वी नो वेरी वेल दैट इंडिकेटर्स के बारे में हमने बिगिनिंग में बात की थी कि लिटमस पेपर जो लिटमस सॉल्यूशन है वो भी एक इंडिकेटर है। सो ब्लू लिटमस पेपर इट चेंजेस इनटू द रेड कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। अगर एसिड कहीं पर होता है तो उसमें ब्लू लिटमस पेपर किस कलर में चेंज हो जाता है, इट चेंजेस इनटू रेड कलर। एंड इफ देयर इज अ बेस देन दैट रेड लिटमस पेपर दैट चेंजेस इनटू द ब्लू कलर। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाहर निकल रही थी, इसके पास में जब हम ड्राई लिटमस पेपर लेके आए हैं, we find no color change in this blue litmus paper. इससे कलर चेंज ही नहीं हो रहा। So no change in this color, it indicates that this is not an acid. यहाँ पे ये एसिड की फॉर्म में नहीं है, ये सिर्फ किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, गैसेस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है। Now to perform this experiment in the laboratories, sometimes it happens that teachers are showing you this experiment in the laboratory and all of a sudden थोड़ा सा जो ये ब्लू लिटमस पेपर है इसे कलर कई बार चेंज हो जाता है। Then you will say कि मैम आपने तो कहा था कि दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ओनली, ये एसिड नहीं है। तो जब ये एसिड ही नहीं है तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर फिर थोड़ा सा रेड क्यों हो गया है? It is because sometimes when this hydrogen chloride gas it is coming out through this test tube, it absorbs the moisture from the surrounding. अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है सराउंडिंग के अंदर तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाहर निकलती क्या करेगा, यहाँ से इसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते ही ना जैसे ही HCl वाटर के कांटेक्ट में आता है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा। और जैसे इसने H+ आयन रिलीज कर दिए, नाउ इट इज शोइंग इट्स एसिडिक नेचर। और जैसे किसी भी एसिड के कांटेक्ट में जब ब्लू लिटमस पेपर आता है तो इट चेंजेस इनटू दी रेड कलर। तो हो सकता है कि कई बार एक्सपेरिमेंट जब लेबोरेटरी में शो करते हैं तो आपको कलर चेंज दिखाई दे। नाउ टू प्रिवेंट दोज एक्सीडेंटल कंडीशंस इन द लेबोरेटरीज कि एक्सीडेंटली ऐसा ना हो जाए कि कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए व्हाट कैन बी डन, वी कैन यूज अ गार्ड ट्यूब। यहाँ पे ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके माउथ पे हमने यहाँ पे एक गार्ड ट्यूब यूज कर दी है, राइट। एंड दिस गार्ड ट्यूब इट इज नथिंग, इट जस्ट कंटेन्स दी कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है, एक ट्यूब लाइक सब्सटेंस है, सेंटर में से इट इज होलो इनसाइड एंड बाहर इसमें कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है यहाँ पे इस गार्ड ट्यूब के अंदर। सो दिस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड इट जस्ट सिंपली एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग। इस सराउंडिंग में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर अगर होगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बाहर से क्या निकल रही है, ओनली HCl गैस इज कमिंग आउट। तो वहाँ पे ड्राई लिटमस पेपर इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स कलर। अब हमें प्रूव करना है कि सच में ये HCl जो है वो गैस है और ये एसिड में जब बनेगी तभी ये कलर चेंज करेगा। तो हमने क्या किया, नाउ वी कैन यूज दी ब्लू लिटमस पेपर इन द वेट कंडीशन। हम थोड़ा सा उसको वेट कर लिया, तो जैसे ये ब्लू लिटमस पेपर वेट होगा, HCl गैस जैसे से कांटेक्ट में आई, उस वेट में से इसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया एंड उसने अपना जैसे मॉइस्चर मिलेगा H+ आयन रिलीज करेगा, जैसे आयन रिलीज करेगा अपने एसिडिक नेचर शो करेगा एंड दिस ब्लू लिटमस पेपर विल चेंज इनटू द रेड कलर। फाइन, सो आई होप दैट दिस एक्टिविटी इज क्लियर टू यू कि गार्ड ट्यूब को अब पूछता है कि व्हाट द गार्ड ट्यूब इज, नेम द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज filled in the guard tube, it is calcium chloride, CaCl2 हम यहाँ पे यूज करते हैं। So there are certain more examples to express that gases, these acids or bases, they show their acidic or basic nature only in the aqueous state by releasing the H+ or OH- ions respectively, right? तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल और लेते हैं कि जब HCl गैस when it is completely dry form, जब ये completely
ड्राई फॉर्म में होगा तब ये H+Cl- का फॉर्मेशन नहीं करता। If this HCl gas is passed through the benzene or toluene chemical substances हैं, अगर इनमें से पास करते हैं then also H+ और Cl- का फॉर्मेशन नहीं होता। तो जब तक H+ आयन रिलीज नहीं हो रही ये अपने एसिडिक नेचर शो नहीं कर रहा। बट एज सुन एज this HCl it reacts with the moisture, it reacts with the water, it gets ionized into H+। और हमने पहले भी बात की थी कि ये जो H+ आयंस हैं ये कभी भी अकेले नहीं रहते हैं एक्वस स्टेट के अंदर। these H+ आयंस they react with the water molecule, ये खुद वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर जाते हैं and this way one H and 2 H, that means H3 and one O and charge H3O+। तो या तो H+ आयन हमने शो कर दिया या फिर हमने शो कर दिया कि H3O+ आयंस, that means these are called as hydronium ions in the aqueous state plus Cl- in the aqueous state. This reaction will take place. So in this case this HCl is going to show its acidic nature। अगर हम किसी बेस की भी बात करें जैसे एसिड्स का आयोनाइजेशन होता है इन द वाटर, इन द सेम वे द बेसिस दे आल्सो गेट आयोनाइज्ड इन द aqueous state। तो NaOH को भी जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं इट फॉर्म्स Na+ aqueous and OH- aqueous। आयंस का यहाँ पे भी फॉर्मेशन हो जाता है and because of formation of these H+ or OH- ions these acids and bases they show their acidic or basic nature। तो पूरा हमने समझा डिटेल के अंदर कि एसिड और बेसिस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक्चुअल में इनके साथ क्या हो रहा है, क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं, क्या केमिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू one more thing over here that what makes this water to ionize or dissociate these acids or bases in their ions। ऐसा क्या है वाटर मॉलिक्यूल के पास कि एसिड और बेसिस को उनके आयंस में ब्रेक कर पाता है? बिकॉज वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, राइट। ये पोलैरिटी शो करता है, ये किसी भी सब्सटेंस को उसके आयंस में ब्रेक कर सकता है, तो इसकी वजह से ये आयंस का फॉर्मेशन करता है। We'll continue our chapter in next video. Till then, thanks for watching.